The biggest concern in the healthcare industry today is not the lack of information. It's in fact the lack of clarity. In today's age and world, we are surrounded and flooded with so much of misinformation. Somebody is telling you to reverse diabetes, somebody is telling you how to lose weight, somebody is telling you some magical drugs. All of them self-acclaimed experts are giving you so much of information, and most of the time it is doing us bad rather than good. And that is where Dr. Saab podcast comes into the picture, because we care about your health. And when it comes to something as serious as your own health or the health of your child, you cannot rely on opinions and assumptions and advices. You only have to rely on the medical experts. And today we bring to you the leading experts and specialists from across the country to give you the right information, factual information, so that it can help you make a better, more informed choice. और आज हमारा topic है something which is very relevant to everybody, especially in the rainy season that we are going to enter, which is एलर्जी और इन्फेक्शन. हम सबको इससे जूझना पड़ता है. ये एलर्जी है कि ये इन्फेक्शन है, हमारी नाक बंद हो चुकी है, हमें continuously खांसी आ रही है. We are here to bust all those myths. We are here to get you the right information from a specialist of 20 plus years. And today we are very, very happy to have with us Dr. Amarpreet Singh Ryer, MD, physician, diploma in emergency medicine and fellowship in diabetes. Hello and welcome, Dr. Amarpreet. Thank you. वेलकम टू डॉक्टर साहब पॉडकास्ट. आपने वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पर आए, बहुत सारे हमारे दर्शकों के साथ जुड़े. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I hope I will be valuable to this podcast. थैंक यू. तो अब जैसे ये मॉनसून सीजन शुरू हो गया है, सो एवरीबडी, मुझे लगता है कि हमारा कम से कम नहीं तो 20 से 30% हमारा इजाफा हो जाता है कफ में, कोल्ड में, एलर्जी में, इन्फेक्शन में. तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये एलर्जी और इन्फेक्शन में फ़र्क क्या है, और ये स्पेशली जो कोल्ड और कफ होता है ये रेनी सीजन में बढ़ क्यों जाता है? बहुत सारे रीजंस हैं. स्पेशली ये वेट क्लाइमेट जो है, इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ लॉट ऑफ पोलन आल्सो. ट्रीज़ पे आ रहा है, पोलन आ रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, कॉकरोचेस आ रहे हैं, डेंडर आ रहा है. ऑल दीज थिंग्स, डस्ट माइट्स, दे कम विद द डस्ट, रेनी सीजन, you know. So they lead to allergies. They are allergens. Body recognize them and gives excessive reaction, more reaction than it is required. So that is what we call allergy. So basically this comes with the rainy season, and we have, like as you said, 30-40% upside of the allergy. And infection, sometimes it is not only allergy. Patients come with high grade fever, earache, and sometimes bacterial infections are also there. So that is where doctor becomes helpful to recognize and clarify whether it is allergy or it is infection or viral or whatever it is. Yeah, that's it. तो इसमें हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया है कि या तो ये वायरल है या ये एक एलर्जी है या कुछ और, ये माइल्ड कुछ और है. सो ये अगर हमें खुद आइडेंटिफाई करना है, तो व्हाट आर द राइट वे symptoms to identify? Usually अगर simple symptoms हैं, like itching है eyes में या nose में, या थोड़ा आँखों में पानी आ रहा है, नाक में खुजली हो रही है, अगर तो ये इतने ही symptoms हैं तो this is most likely an allergy. An allergy. Okay. But अगर इसके साथ आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, या कुछ सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या बहुत सीवियर एक हो रही है, ईयर एक हो रही है, या गले में बहुत दर्द है, स्वेलिंग है, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, रात को सांस लेने में मुश्किल आ रही है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देन वी कंसिडर थिंक अबाउट इन्फेक्शन. एंड देयर इज़ वेयर वी ऐड एंटीबायोटिक्स व्हेन रिक्वायर्ड. समटाइम वी ऐड एंटीबायोटिक्स व्हेन द कंडीशन इज सीवियर एंड वी रिकॉग्नाइज instantly that it is infection. Other times we also go for testing. So we go for some blood tests which clarify whether it is infection or it is allergy. तो इसका मतलब ये है कि
लोगों को खुद डॉक्टर बनना बंद करना पड़ेगा और खुद से अगर कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स खुद से शुरू कर देते हैं, आई थिंक दैट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड। वो सही नहीं है। एक्चुअली बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो ओवर द काउंटर होती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो आप खुद ले सकते हो या केमिस्ट की हेल्प से ले सकते हो, और वो लीगल हैं, जिसमें पैरासीटामोल हो गई या कुछ एलर्जी की मेडिकेशंस हैं, कुछ कफ सिरप्स भी हैं। तो पैरासीटामोल भी क्या एंटीबायोटिक है? नहीं, ये तो एक फीवर की मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत गला दर्द हो गया, फीवर हो गया, पेन होगी, साथ में जैसे कोई एलर्जी की सिचुएशन, ये दवाइयाँ आपको ओवर द काउंटर अवेलेबल है। इवन इन कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड यूरोप, some of the syrups and these medicines are available over the counter, so you do not have to go to doctor for every small thing. So these things you can try at your home for 2-3 days. Okay. If that helps, very good. If not, please do not take antibiotics yourself. That is where doctor would be more helpful, and do the right thing by visiting your nearby physician. राइट। और कई बार एक वायरल कोल्ड होता है या फिर वो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें और ये एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। वायरल फीवर जो मैंने बताया, अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंट पेन हो रही है, गला दर्द हो रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो देन वी विल थिंक अबाउट द इन्फेक्शन। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, जस्ट आपको एलर्जी हो रही है, जैसे इचिंग, रेनाइटिस, नाक से पानी आ रहा है और कुछ नहीं है खास, स्नीजिंग हो रही है, तो दैट कुड बी ओनली एलर्जी एंड देयर एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ओके। तो अगर मुझे घर पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है माइल्ड सा मुझे एलर्जी सी लग रही है और मुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसको घर पे कैसे अपने लिए या अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकती हूँ? यस, उसके लिए ना नेज़ल स्प्रेज हैं आजकल बहुत अच्छी, वेरी गुड ट्रीटमेंट, और वो बहुत सेफ़ हैं। वो एक बार अपने नियर बाय डॉक्टर से आप लिखवा लीजिए, बिकॉज यू वुडंट बी अवेयर विद द नेम्स। सो वंस यू हैव देम, यू कैन यूज़ देम फॉर एलर्जिक रिनाइटिस या नेज़ल, नाक से पानी आ रहा है या स्नीजिंग हो रही है, तो वो एज नीडेड बेसिस पे आप उनको यूज़ कर सकते हो। उनमें कई स्टीरॉइड्स भी हैं, और कई स्टीरॉइड्स प्लस एंटीहिस्टामिन है, दैट इज़ एंटी एलर्जी। Both are useful. Even the steroidal nasal sprays are quite safe when your doctor have recommended you and you know that you are only using it for a short span of time. अगर लंबे टाइम के लिए 10 days हो गए हैं, ज़्यादा हो गया कुछ, तो देन आई एडवाइस कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके फिर ही उसको आगे कंटिन्यू करें। बट फॉर शॉर्ट टर्म येस यू कैन, आप अपना एक पैरासीटामोल लो, एक सेट्रिजिन एलर्जी की एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जहाँ योर डॉक्टर ने आप रिकमेंड करी है, एंड नेजल स्प्रेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर सेफ। अच्छा, पैरासीटामोल, सिट्रोजिन और नेजल स्प्रेज, ये सेफ होता है, दे आर क्वाइट सेफ। या अच्छा, नेजल स्प्रेज में ही वो सलाइन ड्रॉप्स जो होती हैं वो उसी का वो अलग चीज़ है, वो नेजल ब्लॉकेज के लिए है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर नेजल ब्लॉकेज है तो, अभी आपने क्वेश्चन रेनाइटिस का पूछा था जिसमें नाक से पानी आ रहा है, स्नीजिंग आ रही, तो उसका आंसर था वो नेजल स्प्रे एंटी एलर्जिक एंड नेजल स्प्रे विद स्टीरॉइड, या दोनों का कॉम्बिनेशन। बट अगर आपको ब्लॉकेज है तो सलाइन स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, विच इज़ क्वाइट सेफ। थैंक यू। और अब जैसे रेनी सीजन में हमने बात करी कि हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है माइक्रोब्स की तरफ से, और बहुत सारे और कुछ ऐसे मुझे लगता है इंडियन होम्स में भी बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं और बहुत सारे वर्क प्लेस में भी ट्रिगर होते हैं जिनकी वजह से ये एक्सपेडाइट कर जाते हैं हमारी चीज़ें। तो वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं और हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट आई, तो उनके बच्चे को दोबारा ये रेनाइटिस हो रही थी, दोबारा एलर्जीज़ हो रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई एक बार पूछ लूँ बच्चा रहता कैसे है। तो मैंने कहा सेटिंग कैसी है घर की, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट कर ली थी, उनको सारा कुछ कर चुके थे। तो कहते जी बड़ा अच्छा आलीशान घर है हमारा, तो हमारे घर में तो फुली कारपेटिंग वगैरह बहुत हाई क्वालिटी की लगी हुई है। तो मेरे मन में स्ट्राइक किया कि कहीं ये कारपेट ही गड़बड़ ना हो। तो मैंने कहा और, तो कहते बस एक हमारा डॉगी है, वो तो हमने इंपोर्ट किया हुआ है फ़ॉरेन से ही, वो बहुत अच्छा, वो नीट एंड क्लीन रहता है। एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि लास्ट आपने मैट घर का कब सफाई कराया था या चेंज कराया था ना? तो उन्होंने कहा वो तो क्लीन है, वैसे रोज़ हमारे डस्टिंग वेस्टिंग होती है, सारा कुछ वैक्यूम होता है। मैं कहा साफ़ कब कराया था?
तो कहते वो 6 मंथ में एक बार कारपेट, और वो जायज़ भी है, रोज़ रोज़ कौन करता है ना कारपेट। तो मैंने कहा एक काम करो, आप कारपेट निकाल दो, यहाँ आप कारपेट को साफ़ करा लो। तो कहते निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कारपेट निकाला, सारी बेडशीट्स वगैरह को उनको मैंने कहा कि हफ्ते में 2 बार आप गर्म पानी से धुलाओ, बिकॉज आपका पेट भी जाता है। सो वी हैड सुपर गुड रिजल्ट्स। सिर्फ इतना करने से एलर्जी वेंट, एंड वो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज समथिंग विद द डैम्प, यू नो, रेनी सीजन प्लस कारपेट्स प्लस आना जाना, वो ऐसे ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट इज़ हाउ रेनी सीजन। वेरी फाइन एग्जांपल आई थिंक। दिस इज़ माय रियल लाइफ एग्जांपल विद वन ऑफ माय पेशेंट्स, और वो बड़ा खुश है कि मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने तो अपनी तरफ से देखो दुनिया के बेस्ट कारपेटिंग करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है। सो दिस थिंग्स, वही तो मतलब द पीपल हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट अबाउट देयर सराउंडिंग ऑल्सो। हम लोग अपनी निर्भरता इतना दवाइयों पे हमने बढ़ा दी है कि हर चीज़ में हम सोचते हैं कि एक वी विल पॉप द पिल एंड वी विल बी ओके। एंड आई थिंक ये वाली चीज़ हमें एज ये बहुत इंडियंस बंद सारी करनी है। पड़ेगी। क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि आपके बेड शीट्स वगैरह जितने भी हैं, आपके ब्लैंकेट्स हैं, they should be washed regularly with hot water and Dettol and whatever possible। और अपने घर में ये छोटी छोटी चीज़ें, कारपेट जैसी चीज़ें हैं, इनको भी बदलते रहो। मोल्ड है, मक्खियाँ हैं, ये सब जितना हो सके इनसे बचो, दे क्रिएट एलर्जीज। राइट। तो आपको सिर्फ दवाइयों पे कूदने से ज़्यादा है, सबसे पहले अपने घर का एनवायरनमेंट देखें, अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें। सर ने इतनी अच्छी चीज़ बताई कि कारपेट से भी आपको चीज़ें हो सकती हैं, आपको पेट एलर्जी भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट द सराउंडिंग दैट यू सिट एंड वर्क एवरी डे इन। यस यस, राइट। और डॉक्टर साहब एक बात और भी होता है कि कई बार हमारा ब्लॉक्ड नोज़ जो होता है और एलर्जी जैसी इलनेस जो है हमारे स्लीप को, हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, स्कूल में बच्चों को, तो ये काफ़ी मसला कर देती है उनके लिए। ऐसी सिचुएशन में तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि एलर्जी की भी स्टेजेस होती हैं, और बहुत सारे लोगों के कई बार नाक की हड्डी में भी दिक्कत होती है, सम टाइम, है ना, टेढ़ा होता है थोड़ा। कईयों का वेट होता है, आजकल तो बच्चे आ रहे हैं 100-100 किलो के, 14-14 साल के बच्चे हैं, एंड उनको स्नोरिंग हो रही है ऑलरेडी, स्लीप एपनिया हो रहा है, और ऊपर से एलर्जी होना बड़ा डेडली बन जाता है, बिकॉज ऑलरेडी वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऊपर से नेजल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है प्लस ये। यस, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, और एलर्जी को ठीक करते करते ऐसे जो केसेस हैं उनको वेट लॉस भी करना चाहिए इमीडिएटली, और दे शुडंट ट्रीट देमसेल्व्स एट होम। ये सब लोग इमीडिएटली मस्ट विजिट डॉक्टर। कोई भी ऐसा सीवियर, कोई भी सांस लेने में दिक्कत, कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, बहुत सीवियर ईयर एक है, तो अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी है, देन यू मस्ट विजिट योर नियर बाय डॉक्टर। ओके। अब जैसे आपने बताया अभी, आई थिंक इससे रिलेटेड ही ये सवाल है मेरा कि कई बार एक नॉर्मल एलर्जी होती है और कई बार सेम एलर्जी को अगर अनट्रीटेड या अनचेक्ड रखा जाए तो वो बढ़ के आपको साइनाइटिस या फिर ईयर, हाँ, साइनोसाइटिस या फिर ईयर इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन की तरफ प्रोग्रेस कर जाती हैं। यस, ये और ये भी बड़ा कॉमन है, क्योंकि आजकल ना ये बहुत गलत है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन लोग 10-10 दिन लेते रहते हैं अपने घर में। और जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, छोटी मोटी एलर्जी, फीवर, ओवर द काउंटर, वो पूरी मेडिकल काउंसिल्स ने अलाउ करी हुई हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ करी हुई हैं, उन चीज़ों को तो आप लो 2-3 दिन। बट अगर आपने जो अभी सारे सिम्टम मेंशन करे हैं, अगर आपको सीवियर ईयर एक हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ गई, गले में हो रहा है कुछ, तो ऐसी चीज़ों पे और आपको 8-10 दिन हो गए हैं, इतना डिले नहीं करना चाहिए। यू मस्ट, दीज आर द कंडीशन वेयर एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। इसमें टेस्टिंग भी होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय द फिजिशियन होनी चाहिए। अच्छा, और एंटीबायोटिक्स खुद से उसका कोर्स ओवर द काउंटर जाके ना करें, नहीं करें, क्योंकि वो मोस्ट चांसेस कि आपको नुकसान ही होगा उसका। इवन एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स भी ना लें अपने आप, उसका भी नुकसान ही होता है। एंड एक सवाल हमारे ऑडियंस हमसे आपसे पूछना चाहती थी कि व्हेन डज अ जीपी स्टार्ट कंसिडरिंग दैट अ पेशेंट में नीड एंटीबायोटिक थेरेपी रादर देन ओनली एंटी एलर्जी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट? देखो, एक तो प्रेजेंटिंग सिम्टम कई बार शुरू में ही बंदा बड़ी सीवियर उसमें आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं
बाय द टाइम वो डॉक्टर तक आते हैं मोस्टली तो पहले ही लेट होते हैं। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में भी ज़्यादातर लोग आके कहते हैं जी 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, है ना, ऐसे है। दूसरी चीज़ जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे आपको फीवर विद चिल्स हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत, खांसी हो रही है सीवियर, बलगम आ रही है, ठीक है, बहुत सीवियर ईयर एक है, या कई बार कान से भी पस आ रही होती है ना, तो और सीवियर हेडेक होता है कई बार साइनोसाइटिस में, पूरा स्टिफनेस हुई पड़ी होती है बॉडी में। तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ती हैं और दे मस्ट विजिट द डॉक्टर नियर बाय। ओके। और in suspected bacterial complication of allergy or URTI, how does the doctor decide the most appropriate antibiotic? पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये URTI क्या होता है और इसको आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए? URTI इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज एंटीबायोटिक है वो अमोक्सिसिलिन क्लावोनेट है, ऑगमेंटिन जो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी सेफ़, बच्चों में भी सेफ़ है, किड्स में भी, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें भी सेफ़ है, इवन इन सेफ़ इन प्रेगनेंसी, एंड इट इज़ सेफ़ इन ऑल अडल्ट्स इवन इफ़ दे हैव डायबिटीज़ और एनी अदर। दवाई का नाम एक बार फिर से बताइए। ऑगमेंटिन, जिसको हम अच्छा, कॉमनली ब्रांड ऑगमेंटिन, नेम ये कहते एंटी हैं, एलर्जिक होती है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन एंड क्लावोनेट, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे बताया है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है URTI में, बट देयर आर अदर ड्रग्स आल्सो, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, देन देयर इज अजिथ्रोमाइसिन। हाँ, अजिथ्रोमाइसिन हर रोज कॉमनली लोग खा लेते हैं, खा लेते हैं, उनके मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो अलग है, मैं आपको ब्रांड थोड़े से मॉलिक्यूल नेम के बता रहा हूँ ताकि हमारे ऑडियंस के लिए इजी रहे। खानी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन जब ये गलत खाई जाती हैं तो इनका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कई बार बंदे को इन्फेक्शन होती है तो वो ऑगमेंटिन खा लेता है 2 दिन 3 दिन, विच इज़ नॉट आइडियल, और 1 गोली खा ली या 2 गोलियां खा ली दिन में, प्रॉपर डोज नहीं लिया जाता। फिर क्या होता है कि वो दवाई छोड़ देता है, बाद में मैं थोड़ा सा ठीक हो गया। अल्टीमेटली दिस पीपल समटाइम्स डेवलप सुपर इन्फेक्शन, क्योंकि वो दवाई वहाँ पे काम करना बंद कर देती है, रेजिस्टेंस हो जाता है, बॉडी उससे आगे काम नहीं लेती। तो आपको जब एंटीबायोटिक शुरू करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक ऐड करनी है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। और दूसरी चीज़, आपको उसका एक फुल कोर्स करना है। फुल कोर्स कितने दिन का होता है? फॉर एग्जांपल मोस्टली थ्राइस डेली, जैसे अडल्ट में मैं कह लूँ। फॉर हाउ मेनी डेज? 10 डेज एक्चुअली जो उसका है बाय बुक, ठीक है। हाँ, अगर कोई लेस छोटी इन्फेक्शन है तो 5-7 डेज है, लेकिन बाय द बुक वी शुड गो बाय एटलीस्ट 10 डेज ऑफ वंस द इन्फेक्शन इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। बट लोग लेते नहीं हैं। और तो मिनिमम आपके हिसाब से रिकमेंडेशन कितनी होनी ही चाहिए? मैं बता रहा हूँ, जैसे अजिथ्रोमाइसिन है उसका मिनिमम 5 डेज तो मिनिमम लेना ही चाहिए। और अगर ऑगमेंटिन नहीं, अजिथ्रोमाइसिन वंस डेली है, डिपेंडिंग ऑन द डोज। 500 डोज अडल्ट में है तो वंस डेली है, और अगर ऑगमेंटिन ले रहे हैं हम 625 थ्राइस डेली है, तो एटलीस्ट 10 डेज व्हेन द इन्फेक्शन इज़ कन्फर्म्ड। तो प्रॉपर, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसा नहीं लेते हैं, दे डू नॉट फॉलो। हाँ, बट जो आजकल एजुकेटेड आगे लोग हैं, न्यू जनरेशन है या हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो सारे तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। इवन एक चीज़ मैंने और नोट करी है कि जो गरीब लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को 100% फॉलो करते हैं। अगर मैंने 10 दिन बोल दिया तो वो देखेंगे ये येलो गोली सुबह लेनी है, रेड रात को लेनी, लेकिन पूरा कोर्स करेंगे। और जो हाईली क्वालिफाइड हैं, IAS आते हैं, IPS, जहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जहाँ कोई जज आ गया, उनको ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज होती है, लेकिन वो मैंने देखा है कि जब फिर भी वो एक आपका एडवाइस लेने आते हैं, वो भी पूरा फॉलो करते हैं। थोड़ी सी बीच में जनता है जो थोड़ी मिडल पड़ी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जागरूक है, फुली जागरूक नहीं है। तो वो कई बार गलती कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अपना भी यूज़ कर लेते हैं गूगल, थोड़ा सा डॉक्टर की एडवाइस भी ले ली, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस का फुल यूज़ नहीं ले पाते, खिचड़ी बना देते हैं वो। हाँ, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। एडवाइस तो उन्होंने ले ली, लेकिन पूरा फॉलो नहीं किया। थोड़ा सा देख लिया कि हाँ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड भी है इंडिया में, है ना, हम केयरलेस हो जाते हैं। वो चीज़ें फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। अल्टीमेटली जब वो पेशेंट दोबारा वही दवाई खाते हैं तो वो काम नहीं करती।
करेक्ट ये करेक्ट। issue है। तो पहली चीज़ तो एंटीबायोटिक आपको खुद से शुरू नहीं करनी है, नहीं और करना अगर है। डॉक्टर की सलाह से आप शुरू कर रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल। बताया कि बाय द बुक्स तो 10 दिन बोला जाता है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 दिन के Yes. बना उसको बंद नहीं करनी है, Right. इवन इफ़ यू आर फीलिंग ओके। Yes. ज़्यादातर होता है हम 1-2 दिन हमने खाई और हमें बेहतर फील ओके करते तो हैं, फर्स्ट डोज में हो जाता फर्स्ट है डोज में अगर हो सही जाता है डोज। इंसान, लेकिन हमें ही नहीं पता कि द व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली right. इनसाइड अस। Right. अच्छा, तो आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स अगर 5 से 6 दिन हमने खाई, ठीक है, लेकिन कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जिस टाइम पे हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, क्या हमें प्रोबायोटिक्स का जो इनटेक है वो बढ़ाना चाहिए, या उसके पहले या उसके बाद में? एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉजली जो एंटीबायोटिक्स है बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक बायोटिक होता है आपका जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया आपके आंतों में जो है। तो अब जब कोई भी एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारेगी चीज़, तो वो जो आपका नॉर्मल good bacteria भी नेचुरल मारेगी, फ्लोरा हाँ। फौना वो भी मार देती है। तो इट इज़ एडवाइजेबल, इट इज़ अ गुड पार्ट जो आपने कहा है, अच्छी चीज़ है। इफ़ वी कैन ऐड प्रोबायोटिक्स आल्सो अलॉन्ग विद तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट होने हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कंबाइन किए हुए हैं, वो Okay. गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, वो दे आर नॉट ओके। अभी फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि भाई वो ओके नहीं है। लेकिन क्यों? ये तो बेहतर रीज़न होनी है चाहिए। क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, एक प्रोबायोटिक है, इकट्ठे दे रहे हो तो यू आर मे बी डिस्टर्बिंग ईच अदर। तो आपको जो प्रोबायोटिक है गैप में देना है। आपको एटलीस्ट मेक श्योर कि अगर आप जिथ्रोमाइसिन वंस डेली ले रहे हो, मान लो सुबह, तो लेट द डोज ऑफ प्रोबायोटिक गो इन द नाइट। तो आपको एक डिस्टेंस दोनों में ज़रूर मेंटेन करना है। राइट। अगर आप ऑगमेंटिन थ्राइस डेली ले रहे हो तो लंच के 2-3 घंटे आपने लंच टाइम पे एक ले ली ऑगमेंटिन, तो उसके 2-3 घंटे बाद ही एक अपना प्रोबायोटिक लें। यू हैव टू स्पेस दैट आउट। स्पेस दैट। तो क्या अगर ये इसमें अगर कॉमन इंसान को इसके मेजरमेंट में दिक्कत हो, तो क्या वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक पे की तरफ ज़्यादा झुकाव डालें? कोई इशू नहीं है है ना, उसमें। हाँ जैसे जी, दही, किमची। वो भी ठीक है। इफ़ समबडी, सबको प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, मैं बता दूं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को एंटीबायोटिक्स देते हैं पर उनको प्रोबायोटिक्स नहीं देते हैं। वो हमें तो वैसे, जैसे हम, मुझे इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते, हमें जो भी पेशेंट आ रहा है उनके बारे में लगभग सब पता ही होता है पहले। हमें उनका गट का भी पता होता है, इनको एसिडिटी होती है नहीं होता है। अब तो मुझे वो भी पता है, जिस पेशेंट को मेरे को ऑगमेंटिन खाने से डायरिया हो जाएगा, लूज स्टूल हो जाएगी, उनको तो देखो खिमची विमची ठीक नहीं करेगा, उनको तो प्रोबायोटिक देनी पड़ेगी, ठीक है, टैबलेट देनी क्योंकि डोज बहुत अलग होते हैं। जो आप ये कैप्सूल में डोज होता है दैट इज़ समटाइम इन बिलियंस, वो एक ही बार आपको प्रोबायोटिक्स खाने से या प्रीबायोटिक खाने से नहीं होता। इवन बहुत सारे लोग वो आजकल थोड़े लिक्विड आते हैं छोटे छोटे पीने वाले, जो कीफिर जो कुल्ट है ना, याकुल्ट और तो कीफिर होते हाँ, हैं। तो उनमें वो ठीक है एज डेली प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप उसको एक कैप्सूल से कंपेयर करो, तो एक बार मैं एक कैप्सूल की स्ट्रेंथ देख रहा था कि 1 कैप्सूल के बराबर अगर खाना हो तो शायद आपको 100 वो खाने पड़ेंगे एक टाइम पे। तो which is billions in, which is not possible, हाँ, है ना? UFO बिलियंस में होते हैं ये हाँ, वाले। तो आपने देखा होगा, आप देख लेना एक बार। तो वहाँ पे अगर आपको सस्पेक्टेड है कि डायरिया हो जाएगा या पेट खराब होता है या, तो उस टाइम पे तो आप प्रोबायोटिक ले लेना चाहिए। अच्छा। और अदरवाइज आपको जो हेल्दी प्रैक्टिस योगर्ट और किमची और वो करते रहना चाहिए। और रेगुलर डे में अगर आपको, इफ़ यू नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग ऑल्सो, तो क्या उस टाइम पे प्रोबायोटिक्स का सेवन रिकमेंडेड होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, रिकमेंडेड है और खाने चाहिए सबको। और नेचुरल जो आपने कहा है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें पॉसिबल हैं, सोक्रात आता है, कैबेज आती है, बहुत सारे है ना आजकल सिरका रेडीमेड आते हैं, मम्मी डाल के बनाती हैं बहुत सारे घर वो के देखो वो नुस्खे जो होते हैं। अचार थे, मुझे तो लगता है वो भी सारे प्रीबायोटिक का काम करते थे, क्योंकि उनमें भी सारी चीज़ें थी। तो दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। दही चलता था पहले, तो हर घर में फ्रेश दही बनता था, बिल्कुल, और हर रोज बंदे खाते थे, तो दैट वाज देयर। सैलड खाते थे घर का, दैट इज़ आल्सो वन सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक। सब्जियां घर की सारी, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। तो जितना भी फाइबर जा रहा है वो प्रीबायोटिक ही है, वो प्रोबायोटिक बना लेती है बॉडी अपने आप ही उसको अंदर। तो अगर आप एक अच्छी डाइट खा रहे हो विद द गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, तो आपका फ्लोरा एंड फौना अच्छा रहेगा बॉडी का।
राइट, और जितना फ्लोरा एंड फौना अच्छा रहेगा उतनी ही आपकी इम्यूनिटी, आपका कुछ घर पे, एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल। सभी पूरी ओवरऑल हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। राइट, अभी आपने बीच में एक मेंशन किया था कि एमॉक्सिलिन क्लेवुलेंट, तो क्या ये व्हेन इज इट यूज्ड, और इसको कौन से ऐसे केसेस में, राइट फ्रॉम बैक्टीरियल साइनसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं? ये जितनी भी आपने बताई हैं सब में यूज़ हो सकता है, चाहे वो साइनोसाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन हो, in all of these it can be used safely under the guidance of expert of course. अच्छा, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, ये खुद से जाके नहीं लेकर आनी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इतनी कौन सा अच्छी दवाई है, इसका मिसयूज ना करें। करेक्ट। और बहुत सारे हम लोग बात कर रहे थे कि घर पे घरेलू नुस्खों से हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे सेफ ऑप्शंस हैं? जैसे आपने अभी शुरू में बताया नेजल स्प्रेस काफ़ी कुछ हद तक सेफ रहते हैं, विदाउट द स्टेरॉइड्स वाले वो काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं, सलाइन ड्रॉप जैसे सेफ रहते हैं, तो क्या ये करेक्ट है? और क्या इसमें एंटीहिस्टामीन्स या फिर स्टीम, ऐसी चीज़ें क्या हम एलर्जी मैनेजमेंट में खुद से घर पे कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल देखो, लाइफस्टाइल जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो करना चाहिए। हर बंदे को अपने घर में पूरी सफाई रखनी चाहिए, कहीं मोल्ड नहीं होना चाहिए, डैम्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बेडशीटें जैसे मैंने कहा, कपड़े सारे नीट एंड क्लीन चेंज होना चाहिए, स्टीम ले लेनी चाहिए, स्टीम में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नेज़ल प्रैक्टिसेस हैं वो करनी चाहिए, नेज़ल स्लाइन वगैरह। अब मेक श्योर कि आपको ऑलरेडी कोई स्लीप एपनिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर ये प्रॉब्लम है जो आपका एलर्जी की प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करती हैं, तो उनका पहले ही ट्रीटमेंट करके रखो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपना वेट लॉस करो। अगर आपको कोई रेगुलर बेस पे कोई एलर्जी है तो डॉक्टर से जाके चेकअप कराओ। और इवन एलर्जी टेस्टिंग होती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से स्पेशल चीज़ें हैं ये एलर्जी कर रही हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि कई लोगों को हमने ढूंढा है, किसी को एग की एलर्जी निकलती है, मिल्क की एलर्जी निकलती है। ये एलर्जी का टेस्ट कौन सा होता है? ये एक टोटल एलर्जी पैनल होता है बेसिकली। उसमें हम सारा ही कर लेते हैं कि अगर आपको किसी खाने पीने से एलर्जी है या कपड़ों से एलर्जी है या किसी मेडिसिन से एलर्जी है ना। तो बहुत टाइम मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने, एक को मैंगो से एलर्जी थी। वाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो एक स्टूडेंट था, वो पढ़ने जाता था हॉस्टल में, तो जब वो घर आता था उसको एलर्जी होती थी और वापस जाके 1-1.5 महीना एलर्जी रहती थी हॉस्टल में, बाद में ठीक हो जाती थी और फिर आता था फिर होती थी। अब जब भी वो दिल्ली आए तो वो मुझे दिखाए, तो मैं बड़ा हैरान। तो हमने काफ़ी कोशिश करी ढूंढने की, तो मैंने करते करते बातें करते करते मैं कहा यार आप ना सारी चीज़ें छोड़ दो, सिंपल रोटी वोटी खाया करो और कुछ ना खाया करो। तो फिर बातों में कहा नहीं मैं कुछ नहीं खाता, तो उसका ना साइड में थोड़ा बीपी बढ़ा रहता था। तो मैं कहा भाई यंग हो तो आपका बीपी बढ़ रहा है तो नमक कम खाया करो, अचार कम खाया करो, ऐसे मैंने जैसे बात करते हैं। तो ही टोल्ड मी सर कभी कभी तो मौका मिलता है अचार खाने का। मैं क्या क्यों कभी कभी क्यों, ये तो रेडली अवेलेबल है। तो कहता है ना मैं घर आता हूँ ना तो मम्मी आम का अचार डालती है वो खाता हूँ, उससे वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैं कहा अच्छा। तो फिर कहता थोड़ा मम्मी फिर दे देती है 1-1.5 किलो, फिर वो मैं ले जाता हूँ, थोड़े दिन वहाँ खाता हूँ, बाकी टाइम तो उधर ही रहता हूँ, 5-5 महीने तो नहीं खाने को खत्म हो जाता है। मेरे स्ट्रक किया, मैं कहा आप कहते हो वहाँ थोड़ी देर एलर्जी रहती है फिर ठीक हो जाती है। मैं कहा ये अचार करो ना, एक बंद करो। हमने उसकी मैंगो टेस्टिंग कराई, इसको मैंगो से एलर्जी थी। वाओ। तो ऐसी कई बार सोच ही नहीं सकते हम, हाँ हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम दोबारा कर रहे हैं। तो आप अगर ये एलर्जी टेस्टिंग कराते हो तो कई बार ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। फिर हमने कराई उसको एलर्जी थी। ऐसे कुछ केसेस में जैसे मैंने बोला एग एलर्जी, मिल्क एलर्जी, मशरूम एलर्जी निकली है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जाए तो कई बार बहुत हेल्पफुल होती है। करेक्ट, आप बहुत प्रिवेंट कर सकते हो। यू जस्ट प्रिवेंट। हाँ, तो इसका मतलब है जिन लोगों सोया से भी एलर्जी होती है लोगों को, पीनट से होती है। ये तो 5-6 मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने देखी हुई है, जो कॉमन है। तो इवन आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, शायद अभी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर सीनियर, उनको धनिया से एलर्जी है। क्या फर्स्ट टाइम जो वो मुझे खाना खिला रहे हैं 5 स्टार में, तो एक बहुत अच्छी उन्होंने दाल बनवाई और वो कह रहे हैं इसमें धनिया डालो। तो मैं उनको देने लगा था, मैं नहीं ये खा सकता। मैं कहा मुझे धनिया से एलर्जी है। मैं कहा धनिया से भी एलर्जी होती है क्या? हरे धनिया से एलर्जी है।
हाँ, डॉक्टर हंस प्लीज डोंट माइंड। नहीं नहीं, आपने तो हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि धनिया तक से एलर्जी हो कहाँ सकती से है। कहाँ तक हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है जिन भी लोगों को ज्यादा एलर्जीज हो रही हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इसका मतलब एक बार एक टेस्ट करा लें, टेस्ट तो बनता उससे सारा क्लैरिटी आ जाएगी। टेस्ट तो बनता है, कई बार नहीं पकड़ी जाती चीजें, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज पकड़ी गई, अंडा, हाँ, मशरूम, तो आप पूरी जिंदगी आप बच सकते तो हो आप उस बच चीज़ों गए से। ना। तो आपने एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए ये एलर्जी के टेस्ट का नाम बताइए। ये टोटल एलर्जी पैनल टेस्ट है, रेडिली अवेलेबल है, तो आप ये जाके करा सकते हो। इफ़ यू आर लकी, समटाइम्स पता चल जाता है कि कौन सा एलर्जन है जो आपको तंग कर रहा है। वाओ, ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट टुडे, टोटल एलर्जन टेस्ट। इससे आप बहुत सारी तरीके से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं, और बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने से अच्छा और परेशान होने से अच्छा एक बार आपको पता चल जाएगा कि क्या मसला है और आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद अस। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया था कि एलर्जी मैनेजमेंट जो है सबका अलग अलग मुझे लगता है होता है। बच्चों के एलर्जी मैनेजमेंट अलग होगा, बड़ों का अलग होगा, प्रेग्नेंट औरतों का अलग हो सकता है, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज उनका अलग हो सकता है, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एज्मा या COPD, या फिर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं। तो एलर्जी मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो इनिशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उस टाइम पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से कैसे मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से? देखो, अगर now first I will talk about the pregnant woman because it is very sensitive thing. No pregnant woman should take medicine themselves. उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए। सारी एंटी एलर्जिक सेफ़ नहीं है, सारी एंटीबायोटिक सेफ़ नहीं है, सारी पेन की मेडिसिन सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट बहुत शॉर्ट विंडो है, कुछ दवाइयाँ हैं जो सेफ़ है, हिस्टोरिकली रिज़ल्ट आ चुके हैं, सेफ़ हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और प्लीज़ टेक द सेफ मेडिसिन, सेफ एंटी एलर्जिक। समटाइम्स उनको स्टीरॉइड भी देना पड़ता है, तो देर आर सम वी कैन यूज़ अकॉर्डिंगली एज़ पर द नीड, जहाँ बेनिफिट ज़्यादा है ना। और कई बार एंटीबायोटिक्स भी जो जैसे मैंने कहा देनी पड़ती हैं, तो दे शुड गो टू द डॉक्टर। सेल्फ मेडिसिन आप ना करें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी एंड जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप, क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली हमने केसेस सुने हैं, यहाँ कफ सिरप दे के, एंटी एलर्जी दे के बच्चों की डेथ हुई है। ये बहुत मंदभागा है और सैड है कि आप अपने आप दवाई दे के या कोई भी केमिस्ट से पूछ के कफ सिरप दे रहे हो कि हल्की फुल्की खांसी ही तो है। लेकिन प्लीज़ ये बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और जो ओल्ड हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें ये ट्राई ना करें। ट्राई तो किसी में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये जो ग्रुप है ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप है, तो उनको मत दो। छोटी मोटी एलर्जी के लिए जैसे मैंने कहा, ओवर द काउंटर या एंटीपायरेटिक्स ओवर द काउंटर जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी हुई हैं, दैट कैन बी यूज्ड सेफली, बट दैट शुड आल्सो बी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर फैमिली डॉक्टर। आई एम श्योर एनी फैमिली फ्रेंड डॉक्टर विल हेल्प विद दैट। पर बाकी यहाँ पे बात फीवर या सांस लेने में दिक्कत या सीवियर कफ, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, फीवर विद चिल्स आ रहा है, तो गो टू द डॉक्टर। खुद से ना करें, स्पेशली एल्डरली, इम्यून कॉम्प्रोमाइज पीपल, प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे बच्चे, उनको पहली चीज़ तो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन ही मुझे लगता है बहुत आपने पिछले 1-1.5 साल में सुना है कि कितने बच्चों की डेथ हुई है कफ सिरप से? न्यूज़ में सुना आपने? बाप रे, बड़ी कॉमन न्यूज़ थी ये। कफ सिरप से बच्चों की मौत होते हैं। अभी आई थैंक द गवर्नमेंट के, अभी उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है लास्ट मंथ कि कोई भी केमिस्ट कफ सिरप नहीं दे सकता किसी को भी विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक टू फॉलो दिस गवर्नमेंट गाइडलाइन बिकॉज दिस इज़ द सेफ थिंग फॉर यू। एग्जैक्टली। तो आप अपनी लथार्जी में या अपनी केयरलेसनेस में हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि अभी ना बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया कि अब ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी चल रही हैं, टेली कंसल्टेशन भी अलाउड है। अब यू कैन, आप नहीं भी जा सकते, कई बार बंदा बिजी होता है, कैन अंडरस्टैंड। सम टाइम आप ऑफिस में हो, सम टाइम आप कहीं आउट ऑफ सिटी हो, यू आर नॉट इन टच विद डॉक्टर, तो वहाँ भी प्लीज़ ये टेली कंसल्टेशन का आप हेल्प ले सकते हैं। एडवाइस बाय डॉक्टर वुड बी मच बेटर देन टेकिंग मेडिसिन योरसेल्फ।
राइट राइट। और डॉक्टर साहब आपको 20 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है। 20 ईयर्स हो गए। आई एम 2005 पास आउट, तब से काम ही कर रहे हैं हॉस्पिटल। नहीं, थैंक यू। आप 20 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी 20 वर्षों में आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऐसे मिथ्स सुनने को मिलते होंगे माँ बाप के द्वारा, उनके दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, कफ से लेकर कोल्ड से लेकर एलर्जी के तहत बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते होंगे जो आप उनसे बोलते होंगे नहीं ये नहीं करना है। Yes. तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ी मिथ है कि एंटीबायोटिक हर वक्त हार्मफुल होती है। कई बार लोग आके कहेंगे मुझे कि सर जो भी हो जाए एंटीबायोटिक तो नहीं देनी है। फिर वो धीरे धीरे हम समझाते हैं, देखो उनको भी नहीं पता, ऐसे सुना कि एंटीबायोटिक बुरी है, एंटीबायोटिक बुरी है। अब बुरी नहीं है, बट उसको सही टाइम पे यूज़ करें। तो फिर हम समझाते हैं उनको, फिर उनके कई बार टेस्ट करवा लेते हैं, फिर उनको दिखाते हैं, देखो जी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं और बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं। तो फिर धीरे धीरे हम शुरू कर देते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि सिर्फ ये कहना कि एंटीबायोटिक्स गलत है, ये सही नहीं है। दे आर वेरी गुड ड्रग्स, लाइफ सेविंग है। जब नहीं थी तो मोर्टेलिटी बहुत कम थी, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर कई मिथ आ जाती है जी, जैसे हम फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं या दूसरे कि जी वैक्सीन बहुत बुरे हैं। फिर हमें समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, ये भी सारे मिसकंसेप्शंस आती रहती हैं कि दे आर गुड। जब से वैक्सीन्स आई हैं, अगेन चाइल्ड मोर्टेलिटी अब बच्चों कितनी बढ़ गई है, अब नहीं बच्चे जल्दी से ना, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। उम्र बढ़ गई है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो नहीं होती अब, पोलियो लगा लो, स्मॉल पॉक्स लगा लो, है ना, और इवन फ्लू प्रिवेंट रहती है अगर आप उसको प्रॉपरली लेते रहो। निमोनिया का वैक्सीन है, निमोनिया रहता है, इवन शिंगरिक्स है, आपको हर्पिस जोस्टर नहीं होता है, टाइफाइड नहीं होता है, देखो। तो दीज आर लाइफ सेविंग, क्योंकि ये जितनी बीमारियां मैंने बोली है दे आर डेडली। एब्सोल्युटली। एंड अगर आप इनसे बच जाओ, निमोनिया से बचो, निमोनिया कितना डेडली है, सो मैनी डेथ्स इन द वर्ल्ड एवरी ईयर विद निमोनिया। ये मिसकंसेप्शन है। फिर कई हेल बेंट होते हैं कि भाई स्टीरॉयड नहीं देना है। अब देखो कई बार एलर्जी है, साथ में किसी को अस्थमा है और सीवियर हो गया, सांस नहीं आ रही, तो उस टाइम पे यूज़ करना होता है। फिर हम समझाते हैं कि भाई स्टीरॉइड्स भी हर वक्त बुरे नहीं होते, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग है। बिल्कुल, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी कुछ दिन पहले आई गॉट माई विजडम टूथ रिमूव्ड, तो मुझे डॉक्टर ने बहुत क्लियरली पूछा कि डू यू वांट अ स्टेरॉइड इंजेक्शन, इससे क्या होगा आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो पहले मैं भी बहुत डर गई, मैंने कहा स्टेरॉइड तो कुछ बहुत गलत चीज़ होती है, लेकिन आई थिंक थैंकफुली उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मैं उनकी बात समझ गई एंड आई हैड इट, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई उस चीज़ से। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड जैसे डॉक्टर कर रहा है कि बिकॉज ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस और स्टडी है इतने सालों की, तो डेफिनेटली दे आर हेल्पफुल। कोई भी चीज़ ये बुरी तब बन जाती है जब गलत यूज़ हो, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आप मिस यूज़ हो बहुत ज़्यादा जाता करने है। लगते कई बार हम लिख देते हैं 3 दिन 5 दिन स्टीरॉइड ले लेना, टेपर कर लेना, और बंदा 15 दिन के बाद आता है अभी भी ले रहा है। दैट इज़ वेयर इट गोज़ रॉन्ग। और कहता सर आपने ही तो दिया था, और बंदा और हर्ट फील करता है, भाई मैंने तो दिया था 5 दिन के लिए टेपर करना था, लेकिन अब वो कह रहा है आप ही ने तो दिया था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कई बार कहते हैं जी एलर्जी है तो इसकी इम्यूनिटी वीक है, और ये मैं बता दूं ये भी एक मिथ ही है। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी वीक है तो एलर्जी, ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। हाँ, अगर आपकी एक अच्छी इम्यूनिटी है थोड़ा सा वो हेल्प कर देती है, बट इट इज़ नॉट दैट कि एलर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग और इम्यूनिटी इज़ अ डिफरेंट। हाँ, बहुत सारे आजकल माँ बाप ऐसे करने लग गए हैं कि बार बार अगर बच्चा बीमार पड़ रहा है तो इम्यूनिटी बूस्टर शॉट्स चाहिए हमें। एडल्ट्स में भी ऐसी बातें करने लगे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। हाँ, आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करो, आपका वेट सही हो, सारी चीज़ें आप अच्छे कर रहे हो, ठंडी तली चीज़ें मत खाओ, थोड़ी बाहर की चीज़ें, ठीक है। जो लोग देखो जिसको गले का इशू है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड है, इन सब से जो बहुत सारे इश्यूज हो गए। करेक्ट। मुझे लगता है आजकल लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड ही 70% तो इसी वजह से बिल्कुल। मैं अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने नोट किया है जो चाइल्डहुड ओबेसिटी वाले बच्चे आते हैं उनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जीज भी ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। करेक्ट, बिकॉज द बॉडी हैज़ टू डू मोर वर्क, राइट। तो कितनी चीज़ों को एक बार देखिए। सो चाइल्ड ओबेसिटी इज ऑल्सो वन थिंग दैट पेरेंट्स हैव टू बी कैटेगोरिकली वेरी अवेयरनेस आ रही है, बहुत अवेयरनेस आ रही है। हम लोग भी समझाते हैं व्हेन एवर आई सी एनी ओबीस चाइल्ड इन माई क्लिनिक, तो मैं उस टाइम सोचता हूँ कि अपना 5-7 मिनट सेवा करनी है, इनको समझाना है
कि बच्चे को किस तरीके से बहुत ज़रूरी गाइड करें, है ना। तो बस हेल्प हो जाती है। कई बार बच्चे आते भी हैं दोबारा कि जी आपने कहा था, हमने कोक छोड़ दिया, बेकरी छोड़ दी, आजकल ये सब चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़रूरी है, बर्गर क्योंकि उनकी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी पूरी डिपेंड करती है ऑन योर फिजिकल एट्रीब्यूशन. Right. I think you're doing a fantastic job. And Dr. Amarjeet, it's been a pleasure to have you on Dr. Saab podcast. Thank you very much for your valuable insights. बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग नई नई सीखे हैं. ये बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे. और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन. थैंक यू डॉक्टर साहब पॉडकास्ट में आपको देखने के लिए आप सबका धन्यवाद. नमस्कार.